Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Radlakshmi Solutions Private Limited. So, on behalf of Radlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagar representing Radlakshmi Solutions Private Limited. So, today we are going to talk about the most important topic, that is GSTR amendment with the effective date usages. So, before moving ahead with the today's topic, let's take a small introduction of Radlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple software, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So before moving ahead with the today's topic, we'll just welcome our speakers. So Ms. Sania, are you here? Yes, ma'am. Okay. Ms. Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you very much. Okay. Hearty welcome all of you. So now I request Sania and Sonali to move ahead with your presentation. Yes, ma'am. Hello. Good evening, all. Myself, Sania Patan, representing on behalf of Radlakshmi Solutions Private Limited, on behalf of management and entire team of Radlakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead, our today's topic is GSTR amendments and data uses. GST amendment in Tally Prime. Record GST invoices reflecting GST R1, GST R3B, and annual competition report. After seeing returns in Tally Prime, if changes are needed, upload an amendment GST invoice with reverse value permitted by the department in subsequent month. Tally Prime enables transaction alteration for inclusion in future returns, ensuring accurate GST payment. Amendment made in Tally Prime. Update GST R1, GST R3B and annual computation report with the reverse value. रिकॉर्ड की गई GST इनवॉइसेस GST R1, GST R3B और एनुअल कंपटीशन रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। टैली प्राइम में रिटर्न करने के बाद अगर अल्टरेशन की नीड है तो बाद के महीनों में डिपार्टमेंट के थ्रू रिवर्स वैल्यू के साथ एक अमिटमेंट GST इनवॉइस अपलोड करें। टैली प्राइम एक्यूरेट GST पेमेंट इंश्योर करते हुए फ्यूचर के रिटर्न में इंक्लूड करने के लिए ट्रांजैक्शन में चेंजेस को एक्टिवेट बनाता है। रिवर्स वैल्यू के साथ टैली प्राइम अपडेट GST R1, GST R3B और एनुअल कंपटीशन रिपोर्ट में की गए अमिटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। GST amendment for sales with effective date. If changes are required to a signed return invoice, like change in amount, taxability or tax rate, party GST or others, you must attend the invoices specifying the return's effective date. This ensures proper reporting of amendment in the subsequent month or period. अगर साइनेड रिटर्न इनवाइस में चेंजेस ज़रूरी है जैसे कि अमाउंट, टैक्सेबिलिटी और टैक्स रेट, पार्टी GST एक्सेट्रा, आपको रिटर्न इफेक्टिव डेट स्पेसिफाई करते हुए इनवाइसेस में चेंज करना होगा। यह अगले मंथ या पीरियड में अमिटमेंट को प्रॉपर रिपोर्टिंग इंश्योर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। रिसॉल्व and omit uncertain transaction in GST R1 with return effective date. Whenever you make changes in the transaction that is a part of signed GST return, you need to provide a new return effective date. However, you do not provide the return effective date, such a transaction become a part of uncertain transaction. Section in GST R1. You can easily resolve such transactions and ensure that they appear in desired return period. जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन में चेंजेस करते हैं
जो साइनेड जीएसटी रिटर्न का पार्ट है, तो आपको एक न्यू रिटर्न इफेक्टिव डेट प्रोवाइड करने की नीड होती है। जब आप रिटर्न इफेक्टिव डेट प्रोवाइड नहीं करते, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में जीएसटी R1 अनसर्टन ट्रांजैक्शन में शो होते हैं। आप ऐसे ट्रांजैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। GST amendment for inward supply with effective date. If there is a change in the invoice after you can purchase a particular set of goods or services, then the supplier of goods and services will be amend the invoice provided that the return is already signed. In such cases, the supplier transaction can be found in GSTR 2A from where you can download it and import it to Tally Prime to update your data. अगर आपके गुड्स या सर्विसेज का एक पर्टिकुलर सेट परचेस होने के बाद इनवाइसेस में कोई चेंज होता है, तो गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई इनवाइस में अमेंड करेगा ऑलरेडी रिटर्न साइनेड होना चाहिए। इन दिस केसेस सप्लायर ट्रांजैक्शन जीएसटी R2A में शो होता है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डेटा में अपडेट भी कर सकते हैं, साथ ही टैली प्राइम में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Resolve and omit uncertain transaction GST R3B with return effective date. Whenever you make changes in transaction which is a part of signed GST return, you need to provide a new return effective date. However, you do not provide the return effective date, such transaction become a part of uncertain transaction section in GST R3B. जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन में चेंज करते हैं जो साइनेड जीएसटी रिटर्न का पार्ट है, तो आपको एक न्यू रिटर्न इफेक्टिव डेट प्रोवाइड करने की नीड होती है। जब आप किसी रिटर्न इफेक्टिव डेट प्रोवाइड करने की नीड होती है, जब आप किसी रिटर्न इफेक्टिव डेट प्रोवाइड नहीं करते, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जीएसटी R3B में अनसर्टन ट्रांजैक्शन शो होते हैं। थैंक यू। Over to Sonali ma'am. Tarun sir, thank you. Tarun sir, please carry on. Okay, sure. Yeah, thank you. Ma'am, my screen is visible. Yeah, visible, but Tally is not visible. Your Zoom is showing. Yes, now it's visible. Yeah, now it's visible. Yeah. Yes. Good evening, everyone. My name is Tarun, and आज मैं आपको GSTR 1 से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि इफेक्टिव डेट से रिलेटेड है। तो R1 की रिपोर्ट जो है आपकी, इसमें जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो अपडेटेड वर्जन है उसके अकॉर्डिंग कुछ नई न्यू हेड्स जो है वो भी यहाँ पर ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सेकंड आप देख रहे होंगे इंक्लूड इन रिटर्न्स है, फिर रेडी फॉर एक्सपोर्ट है, नॉट एक्सपोर्टेड है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस है। वैसे तो यहाँ पर अभी कोई भी एंट्रीज नहीं आ रही है, प्रॉपर रिजॉल्व है सारी एंट्रीज। 11 वाउचर्स हैं अपने जो B2B में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट का जो स्टेटस अभी हम देख रहे हैं नॉट साइंड है। ठीक है, जनवरी मंथ का पीरियड हमने सेलेक्ट कर रखा है, और अभी सपोज करिए जनवरी मंथ का अगर हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करके जेसन फाइल एक्सपोर्ट करके जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्टेटस है उसको मार्क एज साइन करना होता है, ताकि जिससे क्या होगा, मार्केट साइन का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर मंथ इसका हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं और ये डेटा हम फ्रीज कर रहे हैं एक तरह से। वो मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा ये प्रोसेस। तो ये करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है मार्केट साइन का। तो मार्केट साइन जब आप करेंगे तो ये इस तरीके से दो ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क करंट रिटर्न एज अ साइन, सेकंड ऑप्शन में है मार्क करंट एंड प्रीवियस रिटर्न एज अ साइन। अगर आपका कोई प्रीवियस पीरियड भी है जिसका साइन अगर आपने नहीं किया है तो ये वो पीरियड भी दिखा देगा आपको। तो एवरी मंथ जब भी आप अगर आप मंथली करते हैं रिटर्न फाइलिंग,
तो भी आप कर सकते हैं इसको। अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो भी आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे सपोज करिए आपने अभी मार्च मंथ का आप करेंगे रिटर्न फाइल, सॉरी फैब मंथ का आप रिटर्न फाइल करेंगे मार्च में, राइट। तो ये रिटर्न फाइल करने के बाद जब आप जीएसटी पोर्टल पे अपना जेसन फाइल अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आप टैली में टैली के डेटा से उसका समरी मैच करेंगे। समरी मैच करने के बाद आपको क्या करना है, GSTR 1 की रिपोर्ट पे आके F10 प्रेस करना है, और F10 प्रेस करके यहाँ से मार्क करंट रिटर्न एज साइन को क्लिक करना है। ये करने के बाद ये इस तरीके से स्क्रीन खुलेगी आपके पास, और ये पूछेगा a few transactions in the return are in uncertain। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी अनसर्टेन में पेंडिंग्स में होगी तो वो इस तरीके से यहाँ पर पॉपअप दिखाएगा आपको, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है आपको। मैंने इसको फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर दिया है। तो ये अब जो स्टेटस है इसका R1 की रिपोर्ट का, वो हो गया है साइन। अब रिटर्न साइन होने का ये मतलब है कि ये डाटा हमारा फाइनल है, अपलोड हो चुका है, रिटर्न फाइल हो चुकी है, ठीक है। अब अगर इन केस जैसे आपके इसमें अगर मल्टी यूजर है, आपने अगर जिस भी मंथ का रिटर्न फाइल कर दिया है, वो करने के बाद आपने उसका स्टेटस साइन कर दिया है, वो करने के बाद अगर इन केस आपके ऑलरेडी साइंड डेटा में कोई भी चेंजेस होते हैं, या इन केस अगर कोई चेंजेस करना पड़ता है, तो उसकी एक्टिविटी क्या रहती है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे अभी सपोज करिए B2B ट्रांजेक्शन्स में हम गए, यहाँ पर कोई एक वाउचर ले लेते हैं, जैसे ये लास्ट वाला वाउचर लिया मैंने, और इसमें राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है। मैं मोर डिटेल्स में जाऊंगा। मोर डिटेल्स में जाने के बाद शो मोर करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है इफेक्टिव डेट का। अब अगर सपोज करिए मुझे ये एंट्री नेक्स्ट मंथ में कंसिडर करनी है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया, और चेंजेस करने के बाद मुझे ये एंट्री एज अमेंडमेंट नेक्स्ट मंथ में चाहिए। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इफेक्टिव डेट यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा नेक्स्ट मंथ का, ठीक है। तो अभी तो ये जनवरी की एंट्री है, तो मैं इसमें फैब डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने फैब का इफेक्टिव डेट डाला, उसके बाद मैं इसको, आप इसको देख भी लेंगे राइट हैंड साइड में इफेक्टिव डेट आ जाता है। तो ये यहाँ पर डेट आ गई है। अब इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल A किया है। ये करने के बाद अब देखिए जो साइन स्टेटस है आपका, अब अगर इसको अगर आप, मैं यहाँ पर फैब का मंथ भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक एंट्री जो है अपनी ये आ रही है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में, ये HSN की एंट्री, ओके। पहले इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। सपोज करिए इसका जो रेट है वो हम कर देते हैं 500, राइट। ये करके हमने किया इसको एक्सेप्ट। तो ये एंट्री अपनी चली जाएगी। हमने चेंजेस मॉडिफिकेशन किए नहीं थे, साइन हमने बाद में किया इसलिए। तो साइन करने के बाद जो डेटा फ्रीज हो जाएगा आपका, अगर इन केस अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे उस फ्रीज डेटा में, तो उसके चेंजेस करने के बाद वो एंट्री आपके आ जाएगी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। आप उस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर वो इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड, इस तरीके से एरर आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस पर जाके एंटर करना है। एंटर करके यहाँ पर वो एंट्री दिखेगी आपको। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल्ट L शॉर्टकट की है इसका। तो सेट इफेक्टिव डेट पे क्लिक करके आप यहाँ से इफेक्टिव डेट आपको देनी होगी, ठीक है। तो इफेक्टिव डेट हम यहाँ पर डाल देते हैं। सेम इफेक्टिव डेट GSTR 3B के लिए भी पूछ रहा है, तो मैं 3B के लिए भी सेम मेंशन कर देता हूँ, और इसको किया मैंने एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये करने के बाद वो एंट्री जो है हमारी वो इसमें आ जाएगी। यहाँ पर एक हेड आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से, बोल्ड कलर से आ रहा है, अमेंडमेंट्स मार्क फॉर फ्यूचर रिटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं F12 करूँ, तो F12 के अंदर इसके रिगार्डिंग भी ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, शो रिटर्न स्टेटस है, शो रिपोर्ट विद वाउचर काउंट पेंडिंग एक्शंस। थर्ड ऑप्शन देखिए, शो वाउचर्स विद पेंडिंग एक्शंस इन अदर पीरियड।
तो इन दोनों ऑप्शन को भी मैं यस कर लेता हूँ, जो इसमें पेंडिंग एक्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। इसको मैंने यस किया, अपनी एंट्री जो आ रही है वो अमेंडमेंट में आ रही है। ठीक है, अभी ये जनवरी मंथ का आ रहा है अपना। अब अगर हम इसके साथ साथ फैब का भी देखते हैं, तो वो एक एंट्री जो है ना अपनी, वो इसके अंदर आ जाएगी। ये वही एंट्री है जो आपकी नेक्स्ट मंथ की है। तो ये 29 जैन की वाउचर वही रहेगा आपका, लेकिन वो कंसिडर होगा नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो जब आप फैब का जब रिटर्न फाइलिंग करने जाएंगे तो ये उस मंथ में एंट्री आपकी इसमें आ जाएगी, इंक्लूड इन रिटर्न्स में आएगी। यहाँ पे वाउचर एप्लीकेबल फॉर करंट पीरियड। अब देखिए करंट पीरियड में तो इतने वाउचर्स आ रहे हैं, कुछ एंट्रीज अनसर्टेन में भी है। एक एंट्री आ रही है तो उसको तो हम रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही करेंगे हम इसका रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो अदर पीरियड जब आप देखेंगे तो अदर पीरियड में एक एक नंबर काउंट आ जाएगा आपका, और वही सेम एंट्री अगर आप देखेंगे तो आपकी वो नीचे आ जाएगी अमेंडमेंट B2B में। तो ये B2B ट्रांजेक्शन थी, इसलिए B2B में दिख रही है। ऐसे ही सेम केस होगा आपका अमेंडमेंट B2C में भी, और एक्सपोर्ट के वाउचर में भी, या क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर होता है आपका, उसमें अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, इन केस अगर करना पड़ता है। तो पहले क्या था, पहले की रिलीज में ये फीचर नहीं दिया हुआ था, अमेंडमेंट्स के हेड्स यहाँ पर दिए हुए नहीं थे। ठीक है, बट अब जो 3.0 है या 3.0 के बाद की जितनी भी रिलीज है, जैसे अभी लेटेस्ट रिलीज 4.0 है, तो उसके अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एंट्री जो आ जाएगी आपकी, वो नेक्स्ट मंथ में कंसीडर हो जाएगी। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो एज अमेंडमेंट जाएगी एंट्री। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जैसे अगर सपोज करिए आपको यहाँ से अगर देखना है, जो भी पीरियड आपने सेलेक्ट किया है उस पीरियड में अगर आपको ये देखना है कि आपकी एंट्रीज जो है, जैसे मॉडिफाई इन बुक्स वाली कौन सी है या मिसमैच वाली कौन सी है, तो आप कंट्रोल व्हील से फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग एक मैं और आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे कि इफेक्टिव डेट की हम बात करते हैं। तो इफेक्टिव डेट आपका मास्टर ऑल्ट्रेशन में भी काम आता है। मास्टर मतलब कि जैसे आपका कोई सर्विस का लेजर है या आपका इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक आइटम्स, तो उसमें भी इफेक्टिव डेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई सपोज करिए, अगर हम कोई एक आइटम ऑल्टर कर लेते हैं, ये मैंने आइटम लिया, फर्स्ट आइटम, इसमें अभी आप देख रहे हैं इसमें HSN कोड भी डाला हुआ है और इसमें टैक्स रेट डाला है 5%। ठीक है, अब अगर हम इसका HSN सपोज करिए अगर चेंज होता है, तो HSN चेंज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना कैसे है। सपोज करिए इसका हमें HSN या टैक्स रेट दोनों में से कुछ भी अगर हमें चेंज करना है, जैसे मैं इसका टैक्स रेट चेंज करता हूँ 12%, तो वो चेंज करना कैसे है, इसके दो ऑप्शन है। आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ से अगर HSN कुछ चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सेबल रखा मैंने इसको। अगर मैं 12% करूँ तो 12% करते ही यहाँ पर ये क्या दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा आपको। चार तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं और ये पूछ रहा है इफेक्टिव डेट और रिवाइज GST डिटेल्स। मतलब जो पहले था वो पहले 5% था और आपने उसको चेंज करके 12% पे किया है, तो भी ये इफेक्टिव डेट आपको डालना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट का मतलब है ये इस पर्टिकुलर डे से इफेक्ट फ्रॉम होगा आपके डेटा पे। ठीक है, तो आपको ये डालना जरूरी है। कई बार क्या करते हैं कि इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि किस डेट से वो एप्लीकेबल किया है। राइट, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इफेक्टिव डेट देना जरूरी है। और यही चीज सेम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप आइटम चाहे ऑल्टर कर रहे हो या आप मास्टर कोई भी ऑल्टर कर रहे हो, जैसे आपका पैकेजिंग का हो गया कोई लेजर या फ्रेट चार्जेस का कोई लेजर है, उसमें अगर आपने डाल रखा है तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर मोर डिटेल्स में जाके भी कर सकते हैं। मोर डिटेल्स में गए, यहाँ पर हमने शो मोर किया। शो मोर करने के बाद GST HSN, अगर हमें HSN अपडेट करना है किसी भी सर्विस के लेजर का या किसी भी स्टॉक आइटम का, तो हम इसमें जाके करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों दोनों में बात एक ही है, चाहे आप बाहर से करें चाहे आप मोर डिटेल्स में आकर के यहाँ से करें। ठीक है, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। जैसे अगर मैं आज की डेट डालूं तो यहाँ पर हम आज की डेट डाल के भी कर सकते हैं।
इस तरीके से पूछेगा आपको स्पेसिफाई डिटेल्स है, तो जो भी आइटम का टैक्स रेट होगा वो डाल देंगे। HSN कोड अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो HSN कोड डाल देंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अभी सपोज करिए अगर मैं आपसे आज की डेट डाल के करता हूँ तो देखिए मेरे को क्या ऑप्शन देगा। देखिए मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, इसको मैं करंट डेट डाल देता हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट किया। अभी देखिए इस आइटम के थ्रू मैंने एंट्रीज नहीं कर रखी है ना, तो इसलिए मुझे अपडेट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन अगर कोई आइटम ऐसा होगा आपका जिसके थ्रू आपने मल्टीपल एंट्रीज कर रखी होंगी, तो जब आप उसको अपडेट कर रहे होंगे ना, तो वो लास्ट में आपको पूछेगा, 3 ऑप्शन देगा आपको। एक Y से एक्सेप्ट करने का आएगा, U से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी एंट्रीज में हो रखी है ना उसमें अपडेट करते हैं हम। जैसे ये आइटम ले लेते हैं, इसको मैंने ऑल्टर किया, यहाँ पर टैक्स रेट हमने 12 किया, 12 करके इफेक्टिव डेट हमने डाला 2/3/23। ये करने के बाद मैं एक्सेप्ट करूंगा। एक वाउचर डेट कब का है अपना, 29 जैन का है ना। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना, इसलिए वो जैन का लास्ट वाले के अकॉर्डिंग वो पिक कर रहा है, राइट। तो ये चीजें आप प्रीवियस हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपका ऑलरेडी जो आपने डाल रखे हैं वो कितने डेट्स आपने डाल रखी हैं, कब कब आपने क्या HSN रेट या टैक्स रेट डाला हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये आइटम्स हो या आपका, मैं आपको एक लेजर के थ्रू भी दिखाता हूँ। अगर आप ऑल्टर करके करते हैं, जैसे कोई लेजर ले लेते हैं, यहाँ पर काफी सारे लेजर्स हैं। ये जैसे मैंने फ्रेट चार्जेस का लेजर है, फ्रेट चार्जेस के लेजर में यहाँ पर 5% डाला हुआ है। अगर हम इसको सपोज करिए चेंज करते हैं, 1124 डाला, टैक्सेबल में टैक्स रेट सपोज करिए 18 हमने डाला, इसको कंट्रोल A करते हैं, ठीक है। ये भी अनयूज्ड है आपका। तो जो यूज होगा ना ऑलरेडी, उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, Y से एक्सेप्ट का आएगा, U प्रेस करेंगे तो अपडेट का आएगा, और B से बैक आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको U प्रेस करना है, ताकि वो अगर वही सेम लेजर आपका मल्टीपल एंट्रीज में यूज हुआ हो तो वो सारे वाउचर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ठीक है। तो R1 के रिगार्डिंग अगर आप अमेंडमेंट करते हैं कोई भी एंट्रीज को जो प्रीवियस पीरियड की हो और उसको नेक्स्ट मंथ में कंसिडर करना हो नेक्स्ट रिटर्न फाइलिंग में, तो उसके लिए आपको इफेक्टिव डेट डालना जरूरी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आज का आपका सेशन, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Thank you both of you for your presentation. So now it's a time for overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Yeah. Hi. Good evening, everyone. Myself is Bhagwati Bhandaria, and as you know, every Saturday we are connecting on the Zoom meetings for the your knowledge, just knowledge sharing sessions. Okay. So आज का जो टॉपिक था, जो आप लोगों की डिमांड नॉर्मली रहती है, वी आर जस्ट डूइंग द सर्वे, और हमारे पास जो सपोर्ट टीम के पास जितने कॉल लैंड होते हैं उसके बेस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे पास लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है टैली सॉफ्टवेयर में। अकॉर्डिंग दैट वी आर जस्ट अरेंजिंग सेशंस, और उसके बेस पे जस्ट वी आर डूइंग द ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, सो all the customers can get the benefited कि टैली कैसे यूज किया जा सकता है इन इफेक्टिव मैनर्स ऑफ द हिज ओन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड उनका काम कैसे शुरू किया जा सकता है। जैसा कि जानते हैं कि GSTR गवर्नमेंट कंप्लायंस कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। टाइम टू टाइम चीजें आ रही हैं, अपडेट हो रही है, चेंजेस हो रही है। एवरी चेंजेस के साथ में टैली भी सिंक कर रहा है अपने आप को, और टाइम टू टाइम एवरी चेंजेस के बेस पे अपडेशन दे रहे हैं। और वो जो अपडेशन सॉफ्टवेयर में दे रहे हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर के अपडेशंस डेफिनेटली हम आपके तक ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको डिलीवर करें, और यू कैन यूटिलाइज आवर सॉफ्टवेयर विद द एफिशिएंट वे, और आप अपने बिजनेस को स्मूथ कर पाएं और सॉफ्टवेयर आपकी लाइफ को इजी बना पाए, और आपके कंप्लायंस को कितनी ज़्यादा स्मूथ वर्किंग कर सकते हैं उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर कैसे इफेक्टिव है, लाइक टैली प्राइम,
वो आप समझ पाए। तो आज का जो सेशन है जिसमें GSTR अमेंडमेंट और इफेक्टिव डेट यूजेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपने रिटर्न्स, आप अपने मेंटेनेंस, आप अपने ई फाइलिंग्स, एवरीथिंग यू कैन डू थ्रू ई फाइलिंग एंड ई इनवॉइसिंग लाइक दैट, you can do throughout the tally itself, and you can save your time, you can stop your duplicacies work, and इसके साथ साथ आप इन चीजों को अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करके टाइम सेविंग कर सकते हैं। दिस इज आइडिया। So same way, every time we are talking about the multiple type of the solutions जो अपकमिंग टाइम में भी आप पाएंगे, और जो भी हमारे सेशंस होते हैं, एवरी सेशन वी आर अपलोडिंग इन द our YouTube channel. You can just subscribe our YouTube channel and you will get the that training upcoming time. कभी भी आपके पास टाइम का, you can just refer and you can utilize that and you can implement in your organization. अगर आपके पास कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, सो आप हमारे इस चैट बोर्ड में, अभी जूम के चैट बोर्ड में आप देखेंगे हमारा YouTube चैनल का लिंक भी है और हमारे सपोर्ट नंबर है, जिसको आप कभी भी सपोर्ट के लिए फोन करेंगे, दे विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू यूटिलाइज द टैली एंड इफेक्टिव मैनर्स पे एंड सेव योर टाइम एंड मनी। इसके अलावा टाइम टू टाइम वी आर रनिंग मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर योर बेनिफिट्स। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, लाइक एग्जांपल टैली तो आपने देखा, इन्वेंटरी, अकाउंटिंग, manufacturing and process management, workflow management, BOM, everything you can maintain in the Tally. Same way you can use in the SAP. आज हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कंपनी पूरी इफिशिएंटली आप कंपनी को रन कर सकते हैं, लाइक प्री सेल्स, CRM, पोस्ट सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, CRM, मार्केटिंग, जहां आप बिजनेस नेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, पेरोल मैनेज करने के लिए ग्रेट एचआर को यूज कर सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट हैं जहाँ पर हम टाइम टू टाइम आपको काफ़ी स्कीम दे रहे हैं, एडवांटेज दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं और आप कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप उसकी बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म काफ़ी कंपनियों ने देखे हैं और नाउ यू कैन ऑल्सो चेक दैट। सो इसके लिए आप हमारे टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, यू विल गेट द बेनिफिट ऑल्सो। So that's it from today, and from my side, it's over to you, Anga. Thank you so much, sir. So soon the session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media. We would like to have your suggestions for the webinar come training topic so that we can kindly do the sessions accordingly. Thank you everyone for joining us. So now we'll wind up the session. Thank you.